we are honored today to introduce is Miss Mehzabeen Dodi. She is a clinical psychologist at Sir H.N. Reliance Foundation Hospital. So, Ms. Dodi specializes in psychological and behavioral assessment and therapeutic interventions. It's just let's keep it very simple. Ki she deals with is heart patients, stroke patient, cancer patient, organ transplant patients, as well as she had provided invaluable support to over 3,000 plus COVID patients and their caregivers as well. She leads a cancer support group at the hospital. She is a dedicated mental health advocate, I would say, has conducted numerous trainings, webinars across Reliance Industries, NGOs, banks, schools, and various platforms. Her insights are regularly featured in leading publications such as Times of India, Hindustan Times, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, and she also serves as an expert advisor on her circle website. So her contributions have earned her various accolades and including Business World 40 Under 40 Award, Bravo, Ms. Dodi, as well as a COVID Warrior Award for outstanding contribution towards patient care. So let's make a difference, one breath and one mind at a time. Please join me in welcoming Ms. Mehzabeen Dodi. Mehzabeen, all over to you now. Thank you, Dr. Mrunmayee, for such a flattering and long introduction. I'm so happy to be a part over here and so many new faces for me, so many new names for me to interact with. And I'm very, very happy to have received that honor कि मैं आज आपसे बात कर सकूं और mental health के बारे में और ज़्यादा हम discussion कर सकें. So without any further delay, मैं मेरा slide share करूंगी आप लोगों के साथ. And Mrunmayee, if you can tell me if my slide is visible. Sure. So we have already spotlighted you. इसके दौरान अगर किसी को कुछ questions है, we will do the question answer session at the end. अगर बीच में कुछ पूछना तो chat box में डालिएगा. Mehzabeen, we can see your slide perfectly fine. Brilliant, brilliant. Okay, all over to you now. Wonderful, wonderful. So today's conversation is something that's very, very interesting and very, very unique because अक्सर हम जब हमारे pulmonary problems के बारे में बात कर रहे हैं, हम हमारे lung health के बारे में बात कर रहे हैं, हम हमारे pulmonologist से बात करते हैं, हमारा SpO2 level क्या है, हमारा oxygen क्या है, हमारे कौन से medicines चल रहे हैं, हम उसके बारे में अक्सर बात करते हैं. And many a times ये सारे conversations में एक important पहलू जो होता है हमारे mental health का वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है. And it's so very important कि Dr. Mrunmayee and all the other pulmonology physiotherapists that are there on the group have chosen this topic to talk about. So, before we get into how mental health helps us with हमारे lungs के problems से related, I want to give a very simple and a very sweet छोटा सा understanding के लिए एक example. So, imagine कीजिए, ठीक है, आप सभी लोग just for 2 minutes imagine कि किसी कारण की वजह से some good fortune की वजह से we have received some large amount of money. Okay, अचानक से हमें लॉटरी लग गई, बोनस मिल गया काम पे, किसी हिसाब से हमें we received a large amount of money. And because we received that amount of money, what we thought कि इस money का अच्छा इस्तेमाल करना है हमें. And अच्छा इस्तेमाल के चलते हमें काफी टाइम से एक बाइक पसंद थी जो किसी कारण की वजह से we were not able to buy. Because वो थोड़ा बजट से बाहर होता था या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था. But because with this extra influx of money, now that goal seems a little more reachable. That goal seems a little more doable. तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और वो बाइक को हम अच्छे से बुक करवा लेते हैं. बाइक है सुंदर हमारे लिए, हमें पसंद है, हम अपने लिए ले रहे हैं, हमारी फैमिली के ले रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस, बहुत सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट इसमें था. वी आर वेरी एक्साइटेड. हमने डेट भी तय कर दी है कि महीने की 10 तारीख को ये बाइक आनी चाहिए घर पे डिलीवर. ठीक है, और बाइक आती भी है 10 तारीख को. बट 10 तारीख को जब बाइक आती है ना, तो उसमें एक छोटी सी गड़बड़ी हो जाती है. जब वो बाइक आती है तो बाइक का पिछला टायर गायब है. तो क्या होगा? बाइक तो आ गई घर पे, बट बाइक का सिर्फ एक ही टायर आया, पिछला टायर है ही नहीं. तो बाइक की जो एक तरह से जो यूटिलिटी वैल्यू होती है ना, वो थोड़ी डाउन हो जाती है ना. बिकॉज एक टायर पे बाइक तो नहीं चलेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसका यूज जो था
जिसके लिए हम एक्साइटेड थे, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी, इतना सब हमने ध्यान लगाया था, that use is no longer there. And the bike is basically useless until the back tire comes in. Similarly, अगर हम इसी एग्जाम्पल का हमारी लाइफ के साथ एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो बहुत ही अक्सर ऐसा होता है कि हमारी लाइफ भी ना इस मोटरसाइकिल के दो पहियों की तरह होती है। और हमारी लाइफ दो पहिए कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा फिजिकल हेल्थ, मतलब कि हमारा बॉडी, क्योंकि हमने कहावत तो सुनी होगी ना, जान है तो जहान है। और दूसरा पहलू हो जाता है हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ। बिकॉज वो एक अक्सर एक पहलू होता है जो हम हमारी हेल्थ के लिए नजरअंदाज कर जाते हैं। बट हमें पता है कि अगर वो पहलू हम नजरअंदाज कर गए और वो पहलू में अगर प्रॉब्लम है, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से हमारा जो लाइफ का जर्नी है ना, वो आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इफ यू आर नॉट वेरी अटेंटिव, इफ यू आर नॉट cognizant ऑफ आवर ओन इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। एंड दैट इज वाई मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ मतलब कि ये नहीं कि हम पागल हो गए या फिर हमें कोई एंजाइटी डिप्रेशन की बीमारी है या फिर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने का ये है कि किस तरह से हमारा माइंड हमें और ज्यादा कोऑपरेट करे, किस तरह से हमारा माइंड हमें और ज्यादा हेल्प करे, ताकि हम हमारे जर्नी में, हमारी पल्मोनरी रिहैब में हम आगे बढ़ सके, हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सके, और इससे हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें हम फर्क ला सके। सो पल्मोनरी रिहैब के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो पल्मोनरी रिहैब जैसे आप सभी को पता होगा, जो डॉक्टर ब्रह्मे के प्रोग्राम में हिस्सेदार है या फिर जो किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करते हैं, दैट इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन बेस्ड ऑन अ वेरी थरो असेसमेंट विच इज फॉलोड बाय पेशेंट सेंटर्ड थेरेपीज, जो इंक्लूड करते हैं एक्सरसाइज, एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज। और इसी प्रोग्राम के अंदर एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे हमने हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। एज अ साइंटिफिक मॉडल जो हम फॉलो करते हैं फॉर मेंटल वेलबींग एंड ओवरऑल वेलबींग, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं द बायोसाइकोसोशल मॉडल, वो सजेस्ट करता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, और सोशल फैक्टर्स एक तरह से आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं एट ऑल गिवन पॉइंट्स इन टाइम। सो बेसिकली व्हाट गोज ऑन विद इन द बॉडी, मतलब शारीरिक तौर पे जो चल रहा है, व्हाट गोज ऑन इन आवर माइंड, जो हम सोच रहे हैं, किस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है, एंड व्हाट गोज ऑन इन आवर एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। ये सारी चीजें हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव या नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोग्राम बनाना, हमारी हेल्थ के ऊपर देखभाल करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप मुझसे क्यों सुनेंगे? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे सालों साल का एक रिसर्च होता है। इसके पीछे सालों साल हमारा जो ये रिसर्च है, वो एक तरह से हमें बताता है कि पल्मोनरी पेशेंट्स अक्सर रिसर्च के हिसाब से एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी तकलीफें होने के चांसेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक नेचर ऑफ द कंडीशन एंड द इम्पैक्ट दैट इट हैज ऑन आवर डे टू डे लाइफ। Studies also indicate that लगभग 50% of COPD patients suffer from significant depressive symptoms at some point in their overall journey. There is also a very very complex interplay between how we feel emotionally versus हमारा जो बाहर का physical activity होता है, and it impacts our O2 level, our exercise intensity. It also affects हमारा basic activities of daily living, जैसे हमारा खाना, हमारी नींद, हमारा socializing, या फिर हमारा कामकाज जो हम घर में करते हैं, या फिर हम अगर ऑफिस जा रहे हैं, हम वर्किंग है, तो ये सारी चीजों पे भी इम्पैक्ट करता है। और ये एक तरह से और भी हमारा रिसर्च हमें ये बताता है कि ये सारी चीजें हमारी फिजिकल सिम्टम्स को बढ़ाने में या फिर उसको कम करने में कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ और रिसर्च हमें ये भी बताता है कि यूज ऑफ O2, ब्रीदिंग असिस्टिव डिवाइसेस एंड सोशल फैक्टर्स, बॉडी इमेज इश्यूज भी काफी हद तक हमारी इमोशनल मेंटल वेलबींग के साथ एक तरह से इंटरैक्ट करते हैं। तो इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, किस तरह से हम हमारी मेंटल हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गया हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेंटल हेल्थ के ऊपर चर्चा करना, मेंटल हेल्थ के लिए स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये हमारा हो गया
आगे का कॉन्टेक्स्ट। बट आप सोच रहे होगे कि ये बता रही है कि हाँ मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ जरूरी है, बट करना क्या है, किस तरह से हम अपने आप को हेल्प करें, व्हाट आर द एक्शनेबल स्टेप्स जो हम ले सकते हैं ये टाइम पे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वांट टू डेडिकेट मेजॉरिटी ऑफ आज का हमारा सेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग दीज काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत ज्यादा हेल्पफुल जरूर है हमारी जर्नी में हमें आगे बढ़ने के लिए, टू हेल्प अस प्रोग्रेस इन आवर लाइफ एंड sustain a good quality of life. So, what is it that we can do to deal with our mental health needs, our mental health requirements? The first and the most basic fundamental strategy, अगर मैं आपको कहूँ तो, is to educate ourselves. Now, education is empowerment. और ये कहीं ना कहीं किसी के लिए एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात होगी कि हाँ एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए, बट क्या होता है ना कि व्हेन वी एजुकेट आवरसेल्व्स अबाउट आवर कंडीशन, अबाउट आवर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एक तरह से हम हमारी ट्रीटमेंट में एक एक्टिव रोल निभाते हैं। जैसे कि अगर आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो, तो गाड़ी में सबसे एक्टिव रोल होता है ड्राइवर का, बिकॉज ड्राइवर जहां चाहे वो गाड़ी मोड़ सकता है, जितनी तेज चाहिए उतनी गाड़ी को लेके जा सकता है, और जब चाहिए तब ब्रेक लगा सकता है। और हमारी खुद की लाइफ में एक्टिव रोल मतलब कि हम हमारी लाइफ के ड्राइविंग सीट पे है। सो नॉलेज अबाउट आवर कंडीशन फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल, एंड उससे क्या होता है ना, जो अनसर्टेनिटी है, जो वरी है, जो फियर होता है, वो काफी हद तक कंट्रोल में आता है, बिकॉज हमें पता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। To know what you are doing and how you are doing it, it is very very important. Because क्या होता है ना, एक बार हमें पता चल जाता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कि जब हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आके हमें कहते हैं कि नहीं आपको इतनी टाइम के लिए इतना एक्सरसाइज करना है, क्यों करना है, इससे क्या फायदा होगा, या फिर ये मेडिसिन आप ले रहे हो, ये मेडिसिन का किस तरह से आपकी बॉडी पे असर होगा, ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया तो हमारा करने वाला पार्ट जो होता है ना वो आसान हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि कंप्लायंस में इश्यू कहाँ पे आ जाती है, बिकॉज डॉक्टर ने बोला है करना है, बट क्यों करना है हमें नहीं पता, है ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करना है, इससे क्या फायदा होगा, कहाँ पे जाके हमारे बॉडी में इफेक्ट होगा, क्या इससे फायदा होगा ये गोली लेने से, ये गोली बंद करने से। सो एजुकेशन अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एम्पावर्स अस टू टेक द राइट डिसीजन एंड टू फॉलो थ्रू दीज थिंग्स। एंड इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर, कि मेरी बेटी बात करती है डॉक्टर से, मुझे नहीं पता क्या मेडिसिन चल रहा है, मेरा बेटा बात कर लेगा, मेरा हस्बैंड बात कर लेगा, मेरी वाइफ बात कर लेगी, ये नहीं, आपको आपके खुद के डॉक्टर से, आपके पल्मोनोलॉजिस्ट, आपके जीपी से भी इंटरैक्ट करना जरूरी होता है, ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट्स है, कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट क्लैरिफिकेशन। Another very important thing is to read your own reports. अक्सर हम जो पीएफटी करवाते हैं, हमने 6 मिनट वॉक टेस्ट कर लिया, हम ये टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता रिजल्ट क्या है, हमें खुद नहीं पता। डॉक्टर ने तो थमा दिया 4 पन्ने का ये कुछ पर्चा हमारे हाथ में, ये डॉक्टर के पास है, ये डॉक्टर हम लेके गए, बट उस दौरान रिपोर्ट में लिखा क्या है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा शुरुआत में, एंड इसी के लिए आप आपके फिजियो से, आपके डायटिशियन से, अपने साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, सवाल पूछिए, बिकॉज जितना आप पूछोगे उतना आपका अवेयरनेस बढ़ेगा और उतना हमारा एक सेंस ऑफ कंट्रोल अच्छा रहता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे ये एक माध्यम है हमारा, ये जो सपोर्ट ग्रुप है, ऐसे अगर आपको कोई और लोग भी पता है जो सिमिलर कंडीशन से गो थ्रू करें, उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। एक तरह से क्या होता है ना, जितना हम हमारी तकलीफ के बारे में क्यूरियस होंगे, जितना हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा, उतना हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि गूगल बाबा के पास नहीं जाना है। हम्म अक्सर ऐसा होता है कि हम जो अवेयरनेस के लिए जाते हैं, हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, बट ऑनलाइन के जो हमारे सोर्सेज होते हैं, जो हमारे रेफरेंसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं कभी कभार थोड़े गड़बड़ी वाले हो सकते हैं, और उसके चलते फिर हमें पता नहीं है कि क्या होगा, ये नहीं होगा, और उससे वो फियर मॉन्गरिंग जिसको हम कहते हैं, हमारा जो लेवल ऑफ फियर, जो टेंशन, जो वरी होता है, वो बढ़ जाता है। तो गूगल पे थोड़ा सा कम और डॉक्टर से थोड़ा सा ज्यादा बात करना है, ठीक है। सो फार आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, आई होप सबको समझ आ रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी,
तो अगर किसी को कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है या फिर कोई सवाल है, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड हमारे प्रेज़ेंटेशन के बाद आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन्स। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो हमारे लिए होता है, कोपिंग स्ट्रैटेजी होता है, वो कहीं न कहीं हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है। एंड इस थिंकिंग में थोड़ा-सा चेंज लाना ज़रूरी होता है एंड द मेन फैक्टर ओवर हियर इज़ टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर अंडर माय कंट्रोल। अक्सर जब हमें कोई एक तकलीफ होती है, जब हमारा बॉडी बीमार होता है या फिर हम कोई स्ट्रेस से गो थ्रू करते हैं, हमारा ध्यान किन चीज़ों पे होता है ना, ये एक तरह से डिटरमाइन करता है कि हमारा आगे का रिकवरी का रास्ता कैसे होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो माइंडसेट है, वो ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस करता है जो हमारे हाथ में थे ही नहीं। हमारी तकलीफ कहाँ से शुरू हुई, कि कहाँ तक फैली है, क्या प्रोग्रेशन हुआ है, जानना ज़रूरी है, बट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है उसके चलते। उसके कंपैरिज़न में, उसके अपोज़ में अगर हम सोचें कि हम किस तरह से हमारा एडहेरेंस पे हम ध्यान दे रहे हैं, हमारे मेडिकेशन पे, कंप्लायंस ऑफ फिजियोथेरेपी, टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स इमोशनली, ये सारे फैक्टर्स एक तरह से हो जाते हैं कि जिस पे मैं एक्चुअली काम कर सकती हूँ। बॉटम लाइन हमारा ये है कि टू फोकस ऑन आवर टाइम, एफर्ट, एनर्जी, रिसोर्सेज ऑन थिंग्स दैट आर एक्चुअली अंडर आवर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जिसके ऊपर हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, अगर हम वो चीज़ों पे फोकस करते हैं rather than things outside of our control, life becomes a little more easier. Life becomes a little more better because then we know कि हमें किस दिशा में जाना है। वेरी सिंपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो कुछ सालों पहले जो हमारा कोविड पैंडेमिक हुआ था, सबको याद है, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस आए थे, बहुत सारी डिफिकल्टीज़ से हम गुज़रे हुए थे। एंड हम अक्सर न्यूज़ सुनते थे कि अरे! इटली में इतने लोग गुज़र गए, फ्रांस में ये हो गया, यूएसए में तो ये हो रहा है। उन उन सारी चीज़ों पे अगर हम फोकस करने जाएँ, हमारे हाथ में क्या था? हमारे हाथ में सिर्फ इतना था, घर के दरवाजे बंद करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज़ करो। और सिर्फ इन तीनों चीज़ों की वजह से ही और थोड़े बहुत प्रिकॉशंस की वजह से ही हम इतने बड़े पैंडेमिक से अपने आप को बचा पाए। सिमिलरली व्हेन वी ट्राई एंड फोकस ऑन थिंग्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल, हमारा जो ये होता है, प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया होता है, वो थोड़ा-सा अलग होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम चली जाएगी, बट हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, हमारी जो इंटरनल क्षमता होती है वो प्रॉब्लम को डील करने की, उसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट होता है। ऑल्सो जब हम पल्मोनरी कंडीशंस की बात करते हैं, सो हमें पता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। सीज़नल वेरिएशंस है, एक्ज़ैजरबेशंस है और जो डिज़ीज़ का जो पैटर्न है, वो काफ़ी हद तक एक नॉन कंसिस्टेंट पैटर्न होता है। उसके चलते भी जो हमारी प्रेज़ेंट सिचुएशन है, उस पे फ़ोकस करते हुए आगे बढ़ना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। To make this point a little more understandable, to make this point a little more important हमारे लिए, because यहाँ पे एक फंडामेंटल माइंड शिफ्ट की हम बात करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ एंड ये एग्जांपल आई वांट कि आप थोड़ा मेरे साथ सोचिए उसके ऊपर, ठीक है? मान लीजिए कि अभी जून का महीना चल रहा है। बारिश कभी भी आ सकती है, कभी भी हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना चल रहा है बारिश का, है ना? गर्मी के मारे आधे लोग हम थक चुके हैं। और इसी दौरान आपने सोचा कि चलो आज अच्छा खासा दिन है, बाहर धूप है, तो थोड़ा बाहर टहल लेते हैं, बाहर घर के बाहर निकलते हैं। और जैसे ही आप घर के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आपने 2 कदम बाहर लिए नहीं कि एकदम ज़ोरों-शोरों से बारिश होना चालू हो जाती है, धूम-धड़ाके। हुँ, बादल गरज रहे हैं, बारिश गिर रही है, बहुत ज़्यादा पानी, पानी, पानी हर जगह हो रहा है। उस सिचुएशन में हुँ, हमारे माइंड में किस प्रकार के थॉट्स आते हैं? ऑफ कोर्स ये तो पहला ही थॉट आएगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होना था? जब मैं बाहर निकला तब ऐसा क्यों? बट आप में से कोई भी लोग मुझे ये नहीं बताएगा कि मैं बादल से लड़ूँगा कि तुझे नहीं मिला था या फिर मैं अपने आप को कोसूँगा कि नहीं मेरी वज़ह से ही बारिश आई। ये तो कोई नहीं सोचेगा। इनकन्वीनियंस तो है। बट इसके बावजूद हम क्या करते हैं कि हम ये प्रॉब्लम में से भी एक तरह से समाधान निकालने का कोशिश करते हैं कि अगर हम घर से बहुत दूर नहीं हैं, तो थोड़ी देर ठहर जाते हैं, थोड़ा शेड पकड़ लेते हैं या फिर बारिश रुकने का ये लेते हैं, थोड़ा-सा टाइम ले लेते हैं। अगर हमारे पास अम्ब्रेला, रेनकोट्स वगैरह ऐसा कुछ है, तो उसके चलते हम घर आ सकते हैं या फिर ओला, उबर, टैक्सी कर सकते हैं।
हर एक इंसान वो पॉइंट पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है अपनी लाइफ में। दिक्कत तो होगी, बट हम अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते, सामने की परिस्थिति को ब्लेम नहीं कर सकते, और डेफिनेटली बारिश को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते कि तुझे नहीं मिला था। इसी वजह से अंडरस्टैंडिंग कि हर एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है उसमें से क्या सोल्यूशन हमें निकालना है, किस तरह से हमें ये प्रॉब्लम हमारे लिए सुलझानी है, और क्या चीज पे फोकस करना है, becomes very very important. So basically things that matter और थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है, उन दोनों का जो एक मिड पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों चीज मिलती है, those are the factors that we as individuals should try and focus more, because then we get that sense of control, we get that sense of understanding कि हमें करना क्या है आगे। I hope everybody is following so far, everybody को समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Yeah, like I said previously also, अगर कोई doubts है, कोई questions है, कोई comments है, please put in the chat box. Right now I can't see the chat box, but after my presentation, I will definitely try and answer all the questions. Going further, another very important, crucial tip जो हम mental health standpoint से हमारे patients को, especially in our rehab setup, we emphasize on is to understand the value of acceptance and mindfulness. Acceptance and mindfulness are critical when we talk about pulmonary rehabilitation, as it helps the patients acknowledge their condition without judgment and to remain present. अक्सर ऐसा होता है ना कि many a times as we go through our healing journey, as we go through our treatment process, अक्सर we feel very very strong emotions जैसे guilt, shame, anxiety, sadness, and even to some extent self-blame. And it is important for us to understand at that point in time that there are no good or bad emotions in the world. It is important कि हर एक इंसान के पास सारे इमोशंस होते हैं, इसमें सही या गलत, गुड और बैड कुछ नहीं होता है। And it is important to acknowledge them and accept all of these emotions without judgment. कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे पॉजिटिव भी फील हो सकता है, नेगेटिव भी फील हो सकता है, इसमें सही गलत कुछ नहीं। और अपने आप को एक्सेप्ट करना कि ओके फाइन, ये मैं फील कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे, ये सोचना जरूरी है। माइंडफुलनेस टेक्निक्स भी ऐसी चीजें होती हैं which can help us reduce those negative thoughts and overall improve our quality of life. This encourages us to focus on the here and now, the present moment. कि अभी ये सिचुएशन, ये घड़ी में मैं क्या कर सकती हूँ, which will help me progress, which will help me get a better understanding of my situation, help me lead a better quality of life. ये हमें फोकस करना है। और रही बात माइंडफुलनेस की, तो आई एम श्योर कि जो डॉक्टर मृण्मय उनके साथ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो पल्मो योगा जो सेक्शन होता है जहाँ पे वो पल्मोनरी रिलेटेड योगा करवाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें भी काफी हद तक वो माइंडफुलनेस एस्पेक्ट की बात कभी ना कभी तो हुई ही होगी। इसके बावजूद of course there are certain techniques, certain tips that even I would like to share with you, and there are certain YouTube videos जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी towards the end of the session, which I'll also pass on to Dr. मृण्मय ताकि वो आपके ग्रुप पे, आपके सर्कल्स में आपको भेज सके। Those are short tiny videos जो आप देख सकते हो, और ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हम हमारे डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट जरूर कर सकते हैं। Going further, there's this one technique तो जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, जो अक्सर मेरे जो पल्मोनरी पेशेंट्स होते हैं, the ones who work with us in our rehab, उनके साथ it has worked very very well, and it is a very very quick 3-minute breathing exercise जो होती है, जो हमें mindfulness के लिए थोड़ा सा हेल्प करती है। This exercise is very quick to perform to get us to get into that habit of doing mindfulness, and it is perfect for beginners and for people who don't feel like कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है सारी एक्टिविटीज करने के लिए। दिस एक्सरसाइज, जैसे इसका नाम है, इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 मिनट्स, एंड हर एक मिनट के लिए एक अलग टास्क है हमारे लिए। तो फर्स्ट मिनट के लिए हमें एक ही सवाल अपने आप से पूछना है, एंड वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट हाउ एम आई डूइंग राइट नाउ, हाउ एम आई डूइंग राइट नाउ। हमें जेन्युइनली अपने आप से ये सवाल पूछना है while focusing on our feelings, our thoughts, and जो भी sensations हमारे बॉडी में arise हो रहे हैं ये टाइम पे। How am I feeling right now?
एंड इसी सवाल के साथ हमें 1 मिनट घड़ी के हिसाब से बैठना है और सोचना है. द सेकंड मिनट गोज इनटू द फैक्ट कि हमें हमारी जो ब्रीदिंग है अवेयरनेस में लानी है. किस तरह से हमारा ब्रीदिंग हो रहा है, कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है, उस पे फोकस करना है. एंड ये थोड़ा सा एज पर योर डिजीज पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है. जैसे आपके पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको सिखाया होगा कि किस तरह से ब्रीदिंग करनी है, किस तरह से सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है, शैलो सांस लेनी है, उस पे फोकस हमें ध्यान देना है. बट कीपिंग अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ. द थर्ड मिनट वी टॉक अबाउट कि जो हमारी अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ थी उसको थोड़ा सा हमें अभी बाहर की तरफ हमारा अवेयरनेस फैलाना है. The last minute is used for expansion of that attention outwards from the breath and to एक तरह से अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से आपका ब्रेथ जो है, जो आप सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी में फील हो रहा है. जैसे सांस अंदर गई, अंदर कैसा फील हो रहा है, चेस्ट में, बेली में, हमारे एब्डोमिनल में, किस तरह से वो फील हो रहा है, उस पे थोड़ा सा अवेयरनेस लगाएं. नाउ ये प्रैक्टिस करते टाइम भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि बट थॉट्स तो मेरे रुकते नहीं हैं. ऐसा नहीं होता है कि मेरा माइंड एकदम क्वाइट हो जाता है. ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान बिल्कुल ही एक तरह से फोकस रहता है. बट कीपिंग अ क्वाइट माइंड कैन बी रादर चैलेंजिंग एंड थॉट्स विल कम अप. The idea is not to block those thoughts, but rather to let them come in your mind and then go away. उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है, उस थॉट को लेकर पकड़ के नहीं रहना है और वापस हमारा फोकस ब्रीदिंग की तरफ लाना है. And this 3 minute activity, this 3 minute breathing exercise can help us tremendously in terms of building हमारा थोड़ा थोड़ा capacity towards mindfulness. I hope everybody has understood this, and I hope that at least a few of you, if not everybody, will try it at least once. एक तरह से कोशिश करने कि कैसा हमें महसूस हो रहा है ये एक्सरसाइज करते. Another very important component, अगर हम बात करें in terms of emotional management, mental well-being, is that of stress management. Now, stress हमारे बॉडी का बहुत ही बड़ा एक दुश्मन होता है. Okay, chronic respiratory conditions जो हमारे होते हैं, that can be very very strongly exacerbated by stress. And stress होते हुए हमारा बॉडी इस तरह से नेगेटिव और डिफिकल्ट और बहुत ही अलग प्रकार के जो हॉर्मोन्स बनाता है, उसके वजह से भी हमारी हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होने के चांसेस हो जाते हैं. और उसी लिए अंडरस्टैंडिंग हमारा स्ट्रेस, managing that stress a little bit better becomes very very important. और मैनेज स्ट्रेस करने से पहले द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर हमारे लिए बन जाता है आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. कि कौन सा एक पहलू है मेरी लाइफ में, कौन सी एक टेक्निक है मेरी लाइफ में, कौन सा एक एस्पेक्ट है मेरी लाइफ में जहाँ से मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है. Whether it's family, whether it's work, whether it's health, understanding that and working towards active steps in terms of stress management is very very important. And इसके चलते अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो talking to a mental health professional, somebody who's a psychologist like me or a psychiatrist is a very very good option. Again, over here it is very important कि आप ये समझे कि it doesn't mean कि हम कुछ पागल हैं या फिर हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है. इट इज जस्ट दैट कि हमारे बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, इतना ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम है, जिसके चलते थोड़ा उसको अलग प्रकार का सपोर्ट की जरूरत है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे बॉडी को वो सपोर्ट दें. सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हम हमारी मेंटल हेल्थ नीड्स के बारे में फोकस करते हैं इज टू कल्टिवेट द आर्ट ऑफ एम्पैथी. नाउ यहाँ पे एम्पैथी में दूसरों के प्रति की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पैथी दैट इज टुवर्ड्स आवरसेल्फ. अक्सर ऐसा होता है कि वी आर सो मच मोर लाइकली टू बी काइंडर टू अ फ्रेंड, टू अ रिलेटिव, टू आवर चिल्ड्रन, टू आवर स्पाउसेस देन वी आर टू आवरसेल्व्स. And we are often so hard and sometimes even cruel when we are thinking about ourselves. And यहाँ पे self compassion is an essential part in terms of our coping.
encouraging ourselves to be a little more kinder, a little more understanding, especially जब we face a little bit of a setback in our life in the course of our rehabilitation or even health related challenges, very, very important. Because self-compassion से ना, we are able to become more resilient. We are able to fight our problems a little bit better. We are able to cope with our problems a little bit better. And we need to realize at the end of the day कि जब हम ऐसी एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कंडीशन की बात करते हैं ना, नॉट ऑल डेज आर द सेम. ओके, देयर आर गुड डेज, देयर आर नॉट सो गुड डेज, देयर आर बैड डेज, बट all of those days पे we as human beings deserve love, compassion and understanding. We have no control कि हमारा हेल्थ प्रोग्रेशन किस तरह से होगा, कैसे होगा, बट we do have control over the fact कि हम अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कंपैशन रखें, हमारी खुद की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें and to be a little more kinder to ourselves. इसी के चलते it is also very important for us to understand कि हम अपने आप के साथ किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से we talk to ourselves, within ourselves, in our mind. वो पॉजिटिव है कि नहीं, उस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Now, positive self-talk can significantly impact our health and our motivation for rehabilitation. So very simply, जब आप सोच रहे होते हो किस तरह के थॉट्स, किस तरह की लैंग्वेज और किस तरह के शब्द आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है. अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा है या फिर हम कुछ अटक रहे हैं कहीं पे, फर्स्ट ऑर्डर पे तुझे इतना भी नहीं आता, इतना भी नहीं होता, मैं तो एकदम यूज़लेस हूँ, मैं तो बर्डन हूँ, मैं तो बोझ हूँ. ऐसे सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं, ऐसे वर्ड्स हमारे मन में आते हैं, दोज़ आर वेरी नेगेटिव एंड दोज़ आर वेरी, वेरी रॉन्ग. So monitoring our own thought patterns becomes a very, very important thing. And talk to yourself as you would talk to your best friend. अगर आपकी जगह पे आपकी कोई सहेली, आपकी कोई क्लोज रिलेटिव अगर वो वैसा महसूस कर रहे होते, तो आप उनको क्या एडवाइस देते? आप किस तरह से उनको समझाते? हमारे शब्द वहीं पे बदल जाते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वहीं पे बदल जाता है. अगर मुझसे गलती होती है तो मैं बेवकूफ, और अगर किसी और से गलती होती है, अरे नहीं गलती तो होती ही है ना? तो वो माइंडसेट संभालना ज़रूरी है. किस तरह से हम दूसरों के प्रति वी आर काइंड एंड कंसिडरेट एंड अंडरस्टैंडिंग. द सेम लेवल नीड्स टू बी गिवन टू आवरसेल्व्स. इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट दैट हम अपने आप के बुली ना बन जाएँ. डोंट बिकम योर ओन बुली एंड ऑल्सो डोंट गेट बुलीड बाय अदर्स. अदर्स मतलब कि फैमिली हो गया, सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं. इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उनसे भी ये नेगेटिव टॉक न सुने, है ना? So positive self-talk becomes very, very important, very, very crucial to help us feel a little more better emotionally, mentally, and to help us move along the journey. Similarly, problem solving, adaptive thinking बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. हमारी लाइफ के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारी कंडीशन की वजह से, think of these conditions as speed breakers and not roadblocks. मैं अक्सर ये एग्जाम्पल मेरे सारे पेशेंट्स को देती रहती हूँ कि जब हमारी लाइफ में कोई तकलीफ आती है, उसको देखने के 2 नज़रिए हैं. एक तो होता है स्पीड ब्रेकर, हम सभी ने स्पीड ब्रेकर देखा है. विजया जी तो अभी ऑटो में है, तो उनको तो पता ही है स्पीड ब्रेकर्स तो चल ही रहे हैं, है ना? तो स्पीड ब्रेकर्स क्या होते हैं कि हमें थोड़ा स्पीड बम्प आता है, थोड़ी गाड़ी की गति कम होती है, जैसे ही हम उसमें से नेविगेट कर गए, लाइफ कंटिन्यूज, गाड़ी आगे बढ़ती रहती है. और रोड ब्लॉक मतलब नाकाबंदी, मतलब रास्ता ही बंद है. तो हमारा थिंकिंग किस प्रकार का है कि जो मेरे सामने जो तकलीफ आई है, वो मेरी लाइफ का एक स्पीड ब्रेकर है कि मेरी लाइफ का एक रोड ब्लॉक है. अगर हमने ये दोनों में डिस्टिंग्विशिंग करना सीख लिया कि हम ये उसको स्पीड ब्रेकर की कैपेसिटी में देखेंगे and not a roadblock, our journey becomes so much more easier. Another very, very important thing, which is very crucial, बहुत ही बेसिक चीज है, बट अक्सर हम थोड़ा नजरअंदाज कर जाते हैं, is to develop a good routine. Now, अगर हमारा रूटीन अच्छा है, हमारा एक स्केड्यूल अच्छा हम बनाते हैं हमारे लिए, it is very, very beneficial for us. A consistent schedule for medicines, exercise and rest
helps us manage our symptoms and improve our compliance with the rehabilitation program also. A routine also provides us with a sense of normalcy. It helps us provide with a sense of predictability, and वो worry, anxiety होने के chances बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. And this routine necessary हर एक इंसान के लिए होता है. And this is not something which is new, but also like all the big organizations, all the big societies that work with pulmonary patients, जैसे हमारा AACBPR हो गया या फिर ACSM है, उन्होंने भी बहुत सालों सालों की रिसर्च में देखा है कि एक रूटीन का इम्पोर्टेंस इज वेरी वेरी बिग. कि जितना हम हमारे लाइफ में प्रिडिक्टेबिलिटी रखते हैं, स्ट्रक्चर रखते हैं, हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ने का becomes better. Yes, while we are talking about improvement, while we are talking about changing things in our life, it is also very, very important for us to celebrate our achievements. Again, we understand कि हर एक दिन सेम नहीं होता है, ups and downs होते रहते हैं हमारी लाइफ में, symptoms में, seasonally, symptom हमारे progression में changes होते रहते हैं. But celebration of our achievements, however small it may be, however छोटा सा ही क्यों ना हो, it is very, very important because it serves as a good motivator for us to go ahead. It serves for us to have a good positive attitude towards our condition and to move ahead. भले ही छोटा सा ही improvement क्यों ना हो. It can also help us boost our self-esteem, reinforce positive behavior. कि rehab में पहले मैं भले ही 10 मिनट ट्रेडमिल पे चलता था, but अब मैं 12 मिनट कर पा रही हूँ. थोड़ा ही फर्क है, 2 मिनट का फर्क है, but it is an improvement nonetheless. It is an achievement nonetheless. पहले मैं इतना वॉक कर पा रहा था, अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा कर पा रहा हूँ. Brilliant improvement. So celebrating smaller achievements also for ourselves is very, very big. Because ये हमें आगे बढ़ने में help करेगा, and this will help us sustain our journey further. Another very important tip, अगर हम बात करें तो, in terms of our coping strategy, is to have good social support. Now, having any long-term chronic illness can be a very isolating experience. Now, I deal with rehabilitation patients all the time. And मैं आपको बताऊं, हर एक जगह पे एक कॉमन थीम होती है. भले ही आप पल्मोनरी की बात करो, कार्डियक की बात करो, कैंसर की बात करो, क्या होता है ना, द पेशेंट जिसको वो तकलीफ हो रही है ना, दैट पेशेंट इज वेरी वेरी आइसोलेटेड मतलब कि उसी को पता है ना उसके साथ क्या हो रहा है. Doctors can understand, doctors can sympathize, empathize. फैमिली केयरगिवर का भी एक सपोर्ट होता है, बट जो हमारे ऊपर बीत रही है वो तो सिर्फ हमें ही पता है. So it can be a very isolating experience. It can make a person feel very alone and very detached from other people. And this loneliness जो हम महसूस करते हैं over a period of time can be a very, very big contributor to the mental health burden of an individual. Loneliness is a very, very bad thing. And ये चीज हमने कोविड के जरिए तो देखी ही है. एंड कोविड में सबसे ज्यादा तकलीफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड उसी के वजह से हो रही थी कि एक इंसान वाज फीलिंग लोनली. एंड लोनलीनेस एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, और ये एक सेंटेंस है जो आई थिंक मैंने 2020 से जो मैं बोलते आ रही हूँ, आई थिंक मैंने हर एक टॉक में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया है कि लोनलीनेस इज अ फर्टिलाइजर फॉर अदर डिजीजेस. जैसे पौधे को उगाने के लिए खाद की जरूरत होती है, बीमारियों को उगाने के लिए लोनलीनेस होता है. लोनलीनेस इज अ फर्टिलाइजर फॉर अदर डिजीजेस. एंड मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, इवन फिजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ कि लोनलीनेस इज सो प्रॉब्लमैटिक एंड देयर आर सो मेनी स्टडीज आउट देयर व्हिच से कि लोनलीनेस की वजह से हमारे पल्मोनरी कंडीशंस, हार्ट कंडीशंस, इतनी सारी चीजों में बढ़ोतरी होती रहती है. So हमारा social support is a cornerstone for successful pulmonary rehabilitation. Encouraging ourselves, people around us, even for caregivers who might be on the call, to encourage family, friends के साथ थोड़ा बातचीत करना, socially active रहना हमारे लिए is very, very important. This can provide social support, it can provide practical help, it can also provide a sense of unity and togetherness. जैसे ये आपका एक वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप है जहाँ पे आप हर महीने दर महीने आप ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, आप देखते हो कि अलग-अलग चीजें आप सीखने मिलती हैं. These are very, very important components for us to maintain our mental health.
So social support is a very important key component जो हमें हमारे बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए मेंटेन रखना है. Whether it is from family, whether it is institutes like this platform that we are on, ये सारी चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है. और रही बात जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये भी समझें कि जो हमारा ब्रेन है ना वो भी शरीर का हिस्सा है. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डोंट निग्लेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ ये सारी चीजों के चलते. मतलब कि अच्छे से अच्छा खाना, प्रॉपर बैलेंस डाइट, आपकी डाइटिशियन ने जो आपको बताया है प्रोटीन रिच फूड है या फिर जो आपको रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारी चीजों को फॉलो करके हेल्दी डाइट लेना, एडिक्वेट वाटर कंजम्पशन रखना, स्पेशली बिकॉज अभी का जो मौसम है, अभी का जो वातावरण है, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो वो प्रॉपर मेंटेन रखना, एक्सरसाइज एंड स्लीप पे ध्यान देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जितना हमारा बॉडी मेहनत कर रहा है उसको रिकूपरेट करने के लिए अच्छी नींद का होना, अच्छी रेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. बिकॉज दीज आर एसेंशियली द पिलर्स जो हमारी एक हेल्थ को बताता है ना. हमारा शरीर, हमारी एक्सरसाइज, हमारी स्लीप, हमारा डाइट और ऑफ कोर्स हमारा मेंटल वेलबींग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी हेल्थ को ओवरऑल अच्छा रखने में. और रही बात हम कंजम्पशन की बात करें, खाना तो हमें अच्छा खाना ही है, बट एक और चीज होती है हमें जो जिस पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन, we need to watch what you consume. And consumption is not just the food that you eat, but it is also what you see, what you hear on TV, on news channels, on social media. जो हम देखते हैं वो भी एक तरह से हमारे लिए कंजम्पशन होता है. And there is a lot of research that has come up recently in the past 10 years which says कि negative media influence हमारी body को और ज़्यादा affect करता है. And that's not just only for pulmonary cases, but that's for all of us. कि जितना हम मीडिया में जो चीजें देखते हैं, किस तरह की चीजें देखते हैं, वो एक तरह से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, whether negatively or positively. So it is important कि जब हम कंजम्पशन की बात करें, तो खाना तो है ही, बट हमारी आंख, हमारे कान, ये भी एक तरह से कंज्यूम कर रहे हैं चीजें हमारे आसपास. तो paying attention to that is also very important. And lastly, while we come to the very, very far end of our presentation, I just want you to leave with this positive thought कि improvement तो हम करते रहेंगे, scope of improvement तो universal है ही, but it is also very, very important that we be gentle with ourselves because you as individuals are doing the best that you can. There are many, many factors जो हमारे रास्ते में आते हैं and sometimes it can feel like an uphill battle. समटाइम्स वो पर्वत चढ़ने वाली बात हो जाती है कि हम एनर्जी ज्यादा लगा रहे हैं, डिस्टेंस कम जा रहा है. बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बी जेंटल विथ योरसेल्व्स एंड you are doing the best that you can. These are the YouTube links. These are 5 videos that I've identified which will help us work on the mindfulness, which of course I'll be sharing with Dr. Mrunmai and she can pass it on to you. And with that, I come to the very final bit of our presentation. Thank you so much for listening so patiently, so attentively to me. बहुत ही लंबा मेरा एक monologue हो गया है, so I would like some of you to talk to me or ask questions or share your thoughts. And yeah, thank you so much.